اور خبر تفصیل سے سانبا ضلع کے رام گڑھ سیکٹر میں بی ایس ایف نے بین الاقوامی سرحد پر ایک درانداز کو ہلاک کر دیا تھا۔ درانداز کی عمر 60 سال بتائی جا رہی ہے۔ اس کے پاس سے پاکستانی کرنسی کے 10 روپے کے 2 نوٹ برآمد کیے گئے۔ بی ایس ایف نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر اس کا پوسٹ مارٹم کرایا۔ اس کے بعد آج بابا چمبلیال پوسٹ پر بی ایس ایف اور پاکستانی رینجرز کے درمیان فلیگ میٹنگ کی گئی۔ قانونی لوازمات کے بعد بی ایس ایف نے لاش کو پاکستانی رینجرز کے حوالے کر دیا۔ دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے سری نگر سے جیش کے مشتبہ ملیٹنٹ کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بشیر احمد نامی مشتبہ ملیٹنٹ کے سر پر 2 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ ادھر پولیس نے لیلا ہارا کاکپورہ پلوامہ کے عبدالحمید نامی ملیٹنٹ کو گرفتار کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عبدالحمید حالیہ دنوں ملیٹنٹ صفوں میں شامل ہوا تھا۔ ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ پلوامہ میں ایک نوجوان پولیس اور کمیونٹی ممبرز کی مدد سے اصل دھارے میں واپس ہوا ہے۔ مذکورہ نوجوان کی شناخت کو مخفی رکھا گیا ہے۔ پولیس نے بارامولہ کے سمیر احمد آہنگر کی ہلاکت میں ملوث ہونے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایس ایس پی بارامولہ عبدالقیوم نے کہا کہ چشتی کالونی بارامولہ سے عاقب بشیر اور عاقب شالہ کو حال ہی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان سے ایک پستول بھی برآمد ہوا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تفتیش کے دوران دونوں نے 25 سالہ سمیر کو ہلاک کرنے کا جرم قبول کر لیا ہے۔ واضح کہ سمیر ایک دکاندار تھا جس پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا اور وہ زخموں سے جانبر نہ ہونے کی وجہ سے اگلے روز دم توڑ دیا تھا۔ باغ میں ملے تینوں، برباغ میں عزیر امین کو پسٹل لے کر آیا اور عاقب کو بتا دے کہ کس طرح چلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پسٹل اس میں یوز ہو گیا تھا، وہ بھی ہم نے ریکور کیا اسی سیم پلیس سے جہاں پہ انہوں نے بتایا، جو کت اس کو فائر کر کے اس عاقب نے دوسرے عاقب کے ہینڈ اوور کیا تھا جو اس نے اوپر بڑ باغ میں رکھا تھا چھپا کر وہاں پر۔ تو پسٹل بھی ہم نے ریکور کیا اور دونوں لڑکے ہماری حراست میں ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو تیسرا آدمی اس میں ہے عزیر امین، وہ نیکسٹ ڈے ایکٹیو ہو گیا، جو اس وقت ایچ ایم دہشت گرد تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ وزارت داخلہ نے گزشتہ 5 برسوں کے دوران ہلاک کیے گئے ملیٹنٹوں کی تفصیلات بھی لوک سبھا میں فراہم کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق سال 2014 سے 2019 تک 963 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز کے 413 جوانوں نے شہادت پائی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق رواں سال دراندازی واقعات میں بھی کمی آئی ہے۔ اگر گزشتہ 3 سال کے اعداد و شمار دیکھیں تو دراندازی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا تھا، تاہم اس سال اس میں نمایاں حد تک کمی آئی ہے۔ مرکزی حکومت کشمیری پنڈتوں کو راحت اور باضابطہ کاری کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے کشمیری پنڈتوں سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزارت داخلہ نے پنڈتوں کو فراہم کی جا رہی سہولیات کی جانکاری دی۔ وزارت داخلہ کے مطابق سال 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اعلان کردہ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت حکومت نے کشمیری مائیگرنٹوں کے لیے 1080 کروڑ روپے کی لاگت سے اضافی 3000 ریاستی سرکاری ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کو منظوری دی ہے۔ حکومت نے وادی میں 920 کروڑ روپے کی لاگت سے وادی کشمیر میں 6000 اضافی ٹرانزٹ رہائش گاہیں تعمیر کرنے کو منظوری دی۔ اس سے پہلے 3000 ریاستی ملازمین اور 725 رہائش گاہوں کی تعمیر کو منظور کیا گیا تھا۔ مائیگرنٹوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے مالی امداد کے علاوہ جموں کے مختلف مقامات اور بڈگام میں رہائش گاہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق مائیگرنٹ پنڈتوں کو مرکزی حکومت کی جانب سے ہر خاندان کو ماہانہ 13,000 روپے رقمی امداد دی جاتی ہے۔ دہلی این سی آر میں سکونت اختیار کر چکے کشمیری مائیگرنٹوں کو بھی ماہانہ رقمی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی نائب صدر صوفی یوسف نے مرکز کی جانب سے این آئی اے کو مزید مضبوط بنانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یوسف نے پلوامہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ این آئی اے کی جانب سے وادی میں کی گئی کارروائیوں سے ملیٹنسی اور پتھراؤ میں کافی کمی آئی ہے اور حالات میں سدھار ہوا ہے۔ صوفی یوسف نے ضلع کے بی جے پی پنچوں اور سرپنچوں سے خطاب کیا۔ پارٹی کے ضلع پلوامہ کے انچارج محمد یعقوب بھی موجود رہے۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے جب ہمارے آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی سرکار بنی 2014 میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہاں حالات جو ہے سدھرنے لگے ہیں، اور جو پیسہ آتا تھا
जो बाहर कंट्री से पैसा आता था उस पैसे को अब नरेंद्र मोदी सरकार ने बंद किया है, जिस वजह से आपने देखा होगा कि आज कहीं स्टोन पेंटर बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ताकतें ऐसे थी जो पेड वर्कर बनाते थे स्टोन पेंटर्स। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन का ये बोलना ही है, अब वो उसको बोलने के बगैर और कोई चारा नहीं है। तो बाकी नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं वो करते हैं, वो हटेंगे पीछे नहीं। जिस तरह उन्होंने एनआईए को और ज़्यादा मज़ीद फाल बनाया है, मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा है। बीजेपी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है, बट मैं सारी इस पार्टियों को बताना चाहूँगा, बीजेपी कोई फैसला करने वाली नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन फैसला करने वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। जब उसको लगेंगे हालात ठीक होंगे तब वो इलेक्शन उसके ऊपर बीजेपी को भी अमल करना होगा, बाकी पार्टियों को भी अमल करना होगा। ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम कहें कि हम इलेक्शन नहीं कराएं या कराएं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है, जैसे वो हमें कहेंगे वैसे हो। एक हैरत अंगेज वाक़े में जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में डॉक्टरों ने एक मरीजा के जिस्म से 25 किलोग्राम वजनी ओरियन सिस्ट निकालने में कामयाबी हासिल की है। डॉक्टरों के मुताबिक सख्त तरीन दर्द में मुब्तला कुन काजीगुंड की 75 साला हुला बेगम को अलहयात नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम तब हैरान होकर रह गई जब मरीजा के जिस्म से 25 किलोग्राम भारी सिस्ट निकाली गई। डॉक्टर ने इस ऑपरेशन को एक अहम तरीन ऑपरेशन करार दिया। उन्होंने दावा किया कि यह मेडिकल साइंस के तहत दुनिया की सबसे भारी और बड़ी ओरियन सिस्ट है, जिसको डॉक्टरों ने जराही के जरिए निकाला है। इससे कबल डॉक्टरों की इसी टीम ने 2014 में अनंतनाग में ही एक 18 साला लड़की से 22 किलोग्राम वजनी ओरियन सिस्ट निकाली थी। इधर मरीजा के रिश्तेदारों ने इस कामयाब ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया है। तो हाई रिस्क पेशेंट था, इन्होंने भी काफ़ी ये भी किया, कोऑपरेट किया, बट फाइनली इंशाल्लाह अच्छे से हो गया। वी ऑपरेटेड दैट ओवेरियन सिस्ट एंड इट वाज वेरी ह्यूज, अराउंड 25 kgs इन वेट, 30-40 into 40 सेंटीमीटर्स वॉल्यूम में था। काफ़ी हैवी सिस्ट था, काफ़ी पेट नीचे पेंडुलस था। मुझे नहीं लगता वो पेशेंट बेचारी अपने वो बोलती थी कि मैं अपने पैर नहीं देख रही हूँ, काफ़ी सालों से मुझे अपने पैरों पे नज़र नहीं है, क्योंकि पूरा पेट यहाँ था, दिख नहीं रहा था उसको नीचे। और फाइनली इंशाल्लाह 1 पॉइंट ब्लड उसको पहले दिया, 1 ड्यूरिंग सर्जरी देना पड़ा। डॉक्टर साहब ने आज हमारी माई को इलाज कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है और मुबारक की बात है। ये हमको इतना उम्मीद नहीं था ये जो ठीक होएगा, आज हमारी माई ठीक होगी, आज बहुत शुक्रिया है। ये मेरी माई 2 साल से बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशान था, हम भी हमको कुछ पता नहीं था। हमने बोला था थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इन्फेक्शन होगा या पानी होगा या हब होगा, कुछ भी होगा। जो हमने देख दिया तो हम हैरान परेशान हो गया बात में, ये क्या चीज़ था ये तो क्या नहीं था। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने कौमी शाहराह व दीगर सड़कों पर गाड़ियों की नकलो हमल पर रुकावटें हाल करने के खिलाफ अनंतनाग में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वजीर बाग से डीसी ऑफिस तक मार्च किया। किसान तहरीक के सरबराह व सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने हमेशा से अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने में कलीद किरदार अदा किया है, लेकिन आज सिक्योरिटी के नाम पर ट्रैफिक को रोकना बिला जवाज है। जबकि कौमी शाहराह पर अक्सर औकात ट्रैफिक की पाबंदी का असर अब यहाँ की मेवा सनत और मईशत पर बुरी तरह से मुरतब हो रहे हैं। मलिक ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से जाती मदाखलत की दरख्वास्त भी की है। जब किसानों के अब जो सबसे ज्यादा काश्त यहाँ हो रहा है फ्रूट हॉर्टिकल्चर, उस पर सबसे बुरा चोट सरकार ने लगा लिया है। हाईवे पर जो फ्रूट ट्रक का आना जाना है उस पर पाबंदी लगा ली है। यात्रा के नाम पर यात्रा ये उनकी नहीं है, ये यहाँ के लोगों ने दरियाफ्त की है और उन्हें गिफ्ट में दे दिया और हमारे वो मेहमान बने हैं हमेशा यात्री, और आज भी वो हमारे मेहमान हैं। मगर इस आड़ में किसान के साथ जुल्म ज्यादती करना ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। जे&के स्टेट जॉइंट कमेटी ऑफ इंजीनियर ग्रेजुएट्स ने आज श्रीनगर समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। ये इंजीनियर्स नौकरी की मुस्तकिली, तरक्की और तनख्वाहों में तफावत दूर करने और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ाने जैसे मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजियों ने इंतजामिया को धमकी दी कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो काम छोड़ हड़ताल करेंगे।
सरकार किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इससे ज़्यादा बदकिस्मती नहीं हो सकती है, जिसके चीफ इंजीनियर्स, जिसके सारे एक्शन एसीएस, जो रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ द नेशन, जो गवर्नेंस को लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाए, इस नौबत पे हमें पहुंचाए कि हम हड़ताल पे आ जाए, इससे ज़्यादा बदकिस्मती इनके लिए नहीं हो सकती है। तकरीबन 100 के करीब चीफ इंजीनियर्स हैं और एससीज हैं, ये मिल जोड़ के बैठेंगे और एक डिसीजन लेंगे कि हम वो स्टेप्स भी ले सकते हैं अगर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी कंटिन्यू हो गई और ये गवर्नमेंट आज नहीं जाग गई कि वी विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज। आशा वर्करों और एनएचएम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किया गया तो मुलाजमीन के हमरा सड़कों पर निकल आएंगे। इन बातों का इजहार सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुपवाड़ा में आशा वर्करों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 5 साला दौर में इन मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मेहनत कशों की उजरतों में इजाफा किया जाए। आज वादे जरूर हैं, फिर पार्लियामेंट में गहमा गोमी होगी, फिर वादे होंगे, लच्छेदार तकरीर मैनिफेस्टोज में रखा जाएगा, लेकिन असल में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इन्हें वो भी नहीं मिल रहा है जो इनका हक है, और अगर ज्यादा देर उन्हें मायूस रखा जाए तो वो दिन दूर नहीं जब ये इकट्ठे मिलकर संघर्ष का रास्ता इख्तियार कर लेंगे, और हम यही कहेंगे उनको, फिर न कहना हमें खबर न हुई। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तेज हवाओं, तूफानी बारिश और आंधी की वजह से डाटसरा त्राल में हायर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक चिनार का एक दरख्त जड़ से उखड़ गया। इसकी वजह से कई तामीरात को शदीद नुकसान पहुंचा। बशीर अहमद दर्जी की 3 मंजिला मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है। अफराद खाना मौजज़ाती तौर पर बच गए हैं। एक तालीमी इदारा, मुतादिद दुकानें, एक बिजली ट्रांसफार्मर के अलावा निस्फ दर्जन गाड़ियों और 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। चिनार के गिरने से कल शाम से त्राल अवंतीपुरा में सड़क पर डाटसरा में घंटों तक ट्रैफिक की नक्ल-ओ-हमल भी मुअत्तल रही। एडीसी त्राल ने अवंतीपुरा पुलिस के हमरा इलाके का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। लोगों ने हुक्काम से मुआवजे की अपील की। उन्होंने चिनार के पुराने दरख्तों की शाख तराशी की मांग की है। बहुत बड़ी बारिश, तेज़ आंधी चली और बारिश के साथ ही जो चिनार का दरख्त है ये बेसिकली रूटलेस है, तो बड़ी मुश्किल से जान बच गई। तकरीबन मोर देन 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसमें शॉपिंग कम्प्लेक्स एक है, एक मेरी पर्सनल गाड़ी है, मकान है, लेटरिन है, बाथरूम है, और बाकी जो असबाबी खाना है ना, असबाबी खाना भी बहुत ज़्यादा उसमें जो नुकसान हुआ। सरकार से यही इस्तदा करता हूँ कि जो बाकी यहाँ जो सड़े हैं और जो वगैरह रूटलेस के ये चिनार हैं, इनकी जल्दी जल्दी शाख तराशी हो जाए ताकि लोग राहत का सांस ले लेंगे। इसका हमने तखमीना किया है, रिपोर्ट बनाया हमने, एंड रिपोर्ट हम आज ही भेज देंगे डीसी साहब को, एंड होपफुली जो भी इसमें अफेक्टेड लोग हैं तो उनको जो लाज़िम उनको मिलना चाहिए वो मुआवजा मिल जाएगा। साथ ही साथ आज हमने कोशिश की कि जो दरख्त के बाकी ब्रांचेस है उसके मकान खटाने के लिए। उधर मंगामा त्राल में कल शाम तेज हवा और बारिश से कई जगहों पर अखरोट के दरख्त जड़ से उखड़ गए। इसकी वजह से इलाके में काफी नुकसान हुआ है। तामीरात के अलावा कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। बीजेपी लीडर अवतार सिंह ने मुतासरा लोगों का मामला हुक्काम के साथ उठाया। ड्रिंकुला अचानक पे वसित तो ये योर डलस मज खास पे साइडस योकुन तम बचे नई अस बचे नई ये गो मकानस पे पश यह न्यू मामूली कर तो यह नी वावन हपर टीनस गो सठा नुकसान या देवारस गो नुकसान तो अस बचे नई कर अपील अगर गवर्नमेंट कम कर इमदाद क्या कर यह देवार वेवार मतलब या मकानस मतलब ये टीन वीन गो खराब कम ज्यादा क्या इमदाद करे तो ऐसे शुक्रगुजार। तूफान की वजह से जो हमारे के 2-3 घरों को उसने नुकसान किया है। जो हम फोटो हमने देखा मीडिया पे तो ये हॉरिबल दृश्य था, तो उसको बर्दाश्त न करते हुए हमने अकॉर्डिंगली अपने कंसर्न डीसी साहब से, एडीसी साहब से और हमारे जो तहसीलदार हैं उनसे भी हमने रब्ता किया, और मुझे आश्वासन दे दिया एडीसी साहब ने कि भाई हम इसका भरपूर इनका जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करेंगे। भद्रवाह में आज दोपहर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया। हंगा नाला में बादल फटने से यहां सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मकई की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। गथा हंगा जैसे इलाकों का जिला हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। हंगा नाले पर लगा पुल पानी में बह गया। इसकी वजह से तलबा समेत कई मकामी लोग अपने इलाके के उस पार दरमानदा होकर रह गए।
لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ سیاسی لیڈران نے انہیں ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد اس پل کو تعمیر کیا جائے۔ روڈ میں اور بھی تو پرابلم ہے، لیکن جیسے جو ہے ہمارا تو یہ پل کی پرابلم ہے۔ اور یہ پل ہو جائے تو یہ چھوٹی موٹی بارش سے کبھی بھی ہماری روڈ بند نہیں ہوتی۔ فلڈ جا رہا ہے، کیسے ہم کیا کر رہی ہے؟ کوئی ہماری سنوائی نہیں ہے، حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ مودی بولتا ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، مودی جی کو یہ بات بولنی چاہیے کہ ہمارا ادھر اتنا گاؤں ہے، نالے میں کیسے کوئی گاڑی دیکھو نا، گاڑیاں وہاں کھڑی ہے، گاڑیاں یہاں کھڑی ہے، کیسے ہم کراس کریں گے؟ کوئی پل نہیں ہے، کوئی روڈ نہیں ہے۔ اس 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں اور یہ ہماری روڈ ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ سر دیکھیں کتنی سی نارمل سی بارش ہونے پر اتنا فلڈ یہاں پر آ گیا، اور معمولی سی بات ہے اگر ایک یہاں پر برج بن جائے تو ہم اس پریشانی سے ہمارا جو مسئلہ ہے حل ہو جائے گا۔ اور روز روز کے یہ روڈ بلاک ہونے سے، روڈ فلڈ آنے سے ہماری جو دقتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پر ایک اچھا سا بڑا سا پل بن جائے۔ ضلع بارہمولہ کے سوپور کے ڈورا اور ملحقہ علاقوں میں کل دوپہر آئے تیز ہواؤں اور بارش نے کئی رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ سفیدے کے درخت اکھڑنے سے کئی مکانات کو بھاری نقصان پہنچا، ساتھ ہی میوہ باغات کو کافی نقصان ہوا ہے۔ ان علاقوں کے باشندوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نقصانات کا جائزہ لے کر انہیں معقول معاوضہ دیا جائے۔ اس بیچ ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جے نیتو نے آج ایک ٹیم کے ہمراہ سوپور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ متاثرہ علاقوں میں مونجی، ڈورو، وارپورہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یعنی کہ یوت طوفان آو، یعنی کہ ات ست ڈوٹ، ات ست رود اتھے پٲٹھۍ، مطلب یعنی کہ گرو مز ووت چکنات، پھرس گریاے، ڈوٹ وولن، یعنی کہ طوفان ووت مالس، کیا مال باغ وچھو تھی، تات مطلب رودمت کنے، مطلب یعنی کہ سہ رود نہ۔ وادی کشمیر کے کرکٹ سے وابستہ افراد کے بیچ اختلافات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حال ہی میں چند سینئر کھلاڑیوں اور کرکٹ ایسوسی ایشن کے ارکان نے سی ای او پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ وادی میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے سری نگر میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑی پرویز رسول نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران جے کے سی اے کی کارکردگی گنوانے کی کوشش کی، تاہم اس دوران ان کو میڈیا کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ وادی میں کرکٹ کے ناقص انفراسٹرکچر کے حوالے سے پرویز رسول پر سوالات کی بوچھار کی گئی، تاہم وہ سی ای او کا دفاع کرنے کی کوشش لگاتار کرتے رہے۔ پرویز رسول نے کہا کہ سی ای او نے گزشتہ 2 سالوں میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کافی کام کیا ہے۔ جب ان سے موجودہ سی ای او کی جانب سے لوڈھا کمیشن کو نظر انداز کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دے پائے۔ بھی لوگ وہاں پہ تھے، کچھ مٹھی بھر لوگ جنہوں نے پورا جے کے سی کو آج تک 70 سال کی جے کے سی کی ہسٹری میں ہائجا کر کے رکھا۔ 2 سال میں اگر آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں گے، 5 جگہ ٹرف وکٹ چل رہا ہے کام اس کا، مجھے لگ رہا ہے 1 ہفتے میں 5 وکٹس میں آپ ٹرف وکٹ پہ کھیل سکتے ہیں۔ تو آنے والے ٹائم میں مطلب لاسٹ ایئر ایک ایم او یو سائن ہوا اسپورٹس کاؤنسل اور جے کے سی اے میں، جو بھی اسپورٹس کاؤنسل کے گراؤنڈس ہیں آلموسٹ 22 ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی گراؤنڈس ہیں اس میں ایک ایم او یو سائن ہوا کہ ہر جگہ جے کے سی ایک ٹرف وکٹ بنائے گی، تاکہ میں نے کروڑوں روپیہ، ہمارے کرکٹرز نے کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ جے کے سی اے سے کمایا، تو ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی وکٹ کے لیے کچھ 10,000 یا 5,000 روپے کہیں دیے ہیں؟ کہیں کیا انہوں نے کوئی کام کیا ہے جو کرکٹ کی بدولت؟ اگر آپ بات کریں گے آپ کا کنٹریبیوشن، الحمدللہ تھوڑی بہت ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کرکٹ کی وجہ سے عزت دی ہے تو ہم بھی کنٹریبیوٹ کر پائے۔ اگر پرابلم جے کے سی میں نہیں ہوتے تو آنریبل کورٹ نے پھر ایڈمنسٹریٹرز کو نہیں لایا ہوتا، سی او کو نہیں لایا ہوتا۔ اگر یہ اسموتھلی کام چلتا تو یہ چیزیں نوبت نہیں پڑتی۔ جے کے سی جو ابھی رن کر رہا ہے نا، یہ سی او رن نہیں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے کمیٹی آف ایڈمنسٹریٹرز، دا آنریبل 2 ججز آف سپریم کورٹ۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی آپ کو بول رہا ہوگا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ چلا رہے ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے 2 ججز، ان کے بعد سی او آ رہا ہے۔ ضلع کپواڑہ کے 8 سالہ معصوم عمر فاروق کو گزشتہ برس آج ہی کے روز پراسرار طور پر انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ 6 بہنوں کا یہ اکلوتا بھائی پہلے لاپتہ ہو گیا اور بعد میں 1 ہفتے کے بعد اس کے گھر سے 3 کلومیٹر کی دوری پر دریا کے کنارے اس کی مسخ شدہ لاش برآمد کی گئی تھی۔
آج تک اس کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ اس کیس کو کرائم برانچ کے سپرد کیا گیا تھا۔ معصوم کے آبائی علاقے میں آج اس کی پہلی برسی منائی گئی۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر میر سیف اللہ اور انجینئر رشید نے بھی لواحقین سے ملاقات کی۔ لواحقین نے امید جتائی کہ قاتل کو ڈھونڈ نکالنے کا کام کرائم برانچ جلد انجام دے گی۔ ہمیں یقین دیا کہ ہم نے پوری اپنی انویسٹیگیشن مکمل کی ہے اور ہم بہت جلد کچھ دنوں کے اندر عدالت میں چالان پیش کریں گے۔ تو میرے حساب سے وہ بات باعث اطمینان ہے اور ہم امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ جو قاتل ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے گا اور انہیں قرار باغ کی سزا ملے گی۔ کے پاس سالڈ کچھ پروفز ہے، لگتا ہے کہ وہ پکڑ سکتے ہیں قاتل کو، کیا وجہ ہے کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے اس بار پھر ایک بار ہم ان کو کہیں گے کہ فوری طور سے آپ اس میں دلچسپی لے کر قاتل کو عدالت کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو اور ریاست کے لوگوں کو پتہ چلے کہ قاتل کون تھا اور قاتل کیوں ہوا، اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا، یہ بھی پتہ چلے گا۔ تو یہ ہم پھر آپ کی وساطت سے، آپ کی چندوں کے وساطت سے ہم ریاست جموں کشمیر کی گورنمنٹ، کرائم برانچ، ڈی جی پولیس اور یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور سے اس میں قاتل کو پیش کرے تاکہ یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم نہ ہو جائے۔ اس کو 1 سال ہوا ہے، ابھی بھی ہمیں انصاف نہیں ملا ہے۔ کرائم کے SSP ہے، اسے میں گزارش کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں، ضرور سے ضرور اللہ کے لیے ہمیں قاتل انصاف چاہیے، بس ہمیں انصاف دو اللہ کے لیے۔ درند کچھ امس موسم ست وچ یہ حال کر سہ کیا وچ مے کورن راتس تڑپ راتس ترا نظر دہس کھوچان وی نت وی ما یہ قاتل بہت گزارش کرا کرائمس بہت SSP صٲبس کرا بہت SP صٲبس کرا فوری طور یس ات من سو یس قاتل آس مے کرن قاتل پیش اگر نہ قاتل کر پیش کی اس ہسا کرو خودکشی کہ یہ میں اخ بچ 7 بچن مز میں اخ بچ کہ یہ آو مسمار کرنا کہ ون تہ پت پھیران تم پتہ دیت کرائمس تہ انتظار وی کران کہ انشاءاللہ میلہِ انصاف مگر ون تہ میول کہیں تیل میلیا انصاف یل کہ سوسائٹی کرو صرف بٲژ امہ خاطر تیار سوسائٹی کرنے خاطر۔ کشتواڑ میں ڈاکٹروں کی مبینہ لاپرواہی سے ایک نوجوان کی موت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ متوفی ثاقب حسین کا رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ خون دستیاب رہنے کے باوجود بلڈ بینک کے انچارج نے خون مہیا نہیں کرایا۔ پولیس نے بلڈ بینک کے انچارج کو گرفتار کر لیا ہے اور یقین دلایا کہ لاپرواہ پائے جانے والے دیگر عہدیداروں کے خلاف بھی FIR درج کی جائے گی۔ احتجاجیوں نے CMO کشتواڑ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر میڈیکل سٹاف کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ دیوار منہدم ہونے سے 17 سالہ ثاقب حسین شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا، تاہم ڈسٹرکٹ اسپتال کشتواڑ میں مبینہ طور پر مناسب طبی نگہداشت نہ ہونے سے وہ اپنے زخموں سے جانبر نہ ہو سکا۔ اس ٹائم اس کو 9:30 بجے کے قریب یہاں پہ لایا ہے اور ایک ہی ڈاکٹر اویلیبل تھا، ڈاکٹر سہیل یہاں اویلیبل تھا، اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایکس رے وغیرہ اس کا کرانا ہے، ایکس رے ہم نے کرایا، لیکن جب ڈاکٹر کو ہم نے دکھایا ڈاکٹر نے کہا کہ پورا بلیک ایکس رے ہے، یہاں کوئی اویلیبل ہے ہی نہیں کچھ ہمارے پاس سامان۔ اس کے بعد بلڈ اس کو ضرورت پڑی، ہم نے بلڈ بینک والے کو کہا، ہم نے کہا کہ ایمرجنسی ہے، اس نے کہا کہ آپ ایکسچینج دے دو ہمیں پہلے بلڈ، ہم نے کہا کہ ایمرجنسی ہے ایکسیڈنٹل کیس ہے، اس نے کہا نہیں آپ ہمیں ایکسچینج دے دو۔ پھر ایک لڑکی آئی چھوٹی سی ایک لڑکی نے بلڈ دیا، اس کے بعد اس نے ہمیں بلڈ دیا وہاں سے۔ یہاں کریٹیکل کیئر ایمبولینس نہیں تھی، ہم نے جب ان کو ایمبولینس کے لیے کہا ان نے کہا کہ ہم ایمبولینس ابھی ہماری ایمبولینس کہیں دوائیاں اتار رہی ہیں، مطلب یہ میں نے کہا کہ 5-7 ایمبولینس وہ کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ سارے ایمبولینس باہر ہی ہیں، کچھ جموں میں کچھ کہاں ہیں۔ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں پہلگام میں بھومی پوجن کا اہتمام ہوا۔ اس طرح مذہبی طور پر باضابطہ طور پر یاترا کا آغاز ہوا۔ مٹن کے مشہور سوریہ مندر میں چھڑی مبارک کا مقدس اشنان ہوا۔ مقامی لوگوں نے چھڑی مبارک کا استقبال کشمیر کے روایتی انداز میں کیا۔ پیش مدثر قادری کی خاص رپورٹ۔ شیو اور شکتی کی پرتیک چھڑی مبارک کو سری نگر کے دشنامی اکھاڑے سے پہلگام پہنچایا گیا۔ بھومی پوجن کے ساتھ ہی اس سال کی شری امرناتھ یاترا کا دھارمک آغاز ہوا۔ مہنت دیپیندر گری کی نگرانی میں چھڑی مبارک کو بعد میں مٹن کے مارتنڈ سوریہ مندر پہنچایا گیا۔ یہاں چھڑی مبارک کا مقدس اشنان عمل دلایا گیا۔ دونوں تقاریب میں مقامی لوگوں اور یاتریوں کی ایک خاصی تعداد موجود رہی۔ 1 ماہ کے بعد مقدس گفا میں شرون پورنماشی کے روز آخری درشن کے ساتھ ہی امرناتھ یاترا اختتام پذیر ہو گئی۔ परंपरागत आज यहाँ पर भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण और छड़ियों का पूजन किया गया और इसी अनुष्ठान के साथ ही इस यात्रा का
धार्मिक रूप से और परंपरागत शुभारंभ माना जाता है। तो आज से यात्रा ये छड़ी मुबारक की प्रारंभ हुई। श्रावण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 15 अगस्त के दिन है, पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर जाया जाएगा उस पवित्र गुफा में जहाँ भगवान शिव हेमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं। अमरनाथ यात्रा ने हमेशा कश्मीर के मजहबी भाईचारे और कश्मीरियत की पूरी दुनिया में अक्कासी की है। हर साल छड़ी मुबारक के इस्तकबाल में बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत कश्मीरी लोग पेश रहते हैं। सभी फिरकों के लोगों ने हमेशा अमरनाथ यात्रा के दौरान कश्मीरियत की सदियों पुरानी अक्कासी की है। माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पर लगता है कि फिर वही पुराने दिन आने वाले हैं और यहाँ अमन का माहौल है। मैं तमाम यात्रियों से निवेदन करता हूँ, जो बाहर के भी है और यहाँ के भी जो कश्मीरी पंडित आते रहते हैं, उनसे निवेदन करता हूँ वो आए और इस में शमूलियत करे, यात्रा में भी शमूलियत करे। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद बराबर जो 90 से पहले चल रहा था यहाँ पर कम्युनल हारमोनी भाईचारा, वो फिर यहाँ पर वो भाईचारा जिंदा हो रहा है। कश्मीरी पंडित खवातीन ने छड़ी मुबारक का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुक़ीम कश्मीरी पंडितों ने माजी की यादों को बयान किया। इन्होंने वतन वापसी की ख्वाहिश और कश्मीर में क़याम अमन की तमन्ना की। बड़ रौनक शवरी मे गो कुन किस्म तकलीफ संबोल मकान पान वह मुसलमान पूरिस मजे मे कह वन कह बाई बरादरी पान में रोज ठीक पे कुन सूरत हालत ठीक बस। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया लगा हमें। हाँ जी। तो क्या वो यादें लौट आई? और क्या, बहुत बहुत हमें याद आती है उस ज़माने की। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वही ज़माना फिर से आ जाए, हम मिलजुल कर इकट्ठा ये हर त्योहार मनाए। देखा है जो हमने यहाँ दिन गुजारे वो हमें बहुत याद आ रही है। हमें बहुत दुख है कि हमने ये छोड़ दिया। हमारी प्रार्थना ये है कि हमें अच्छे से दिन वो लौट आए, अमन अमान आए, हम फिर से अपने भाइयों के साथ, अपने बहन के हर एक साथ हम ये दिन अच्छी तरह से गुजारेंगे। वाज़ेह है कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 2 लाख यात्रियों ने मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। छड़ी मुबारक इस यात्रा का एक अहम जुज़ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। गांदरबल जिले के बालतल रास्ते से अमरनाथ यात्रा पुरसुकून तरीके से जारी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से यात्री हर शाम यहाँ के बेस कैंप पहुंच रहे हैं और दूसरे रोज सुबह सुबह मुक़द्दस गुफा की जानिब कूच कर रहे हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल शिवलिंगम पर ज्यादा बर्फ रहने से यात्रियों ने खुशी का इजहार किया। बर्फबारी के दिनों में मुक़द्दस गुफा और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फ गिरी है, लिहाजा इन दिनों यहाँ का मौसम काफी खुशगवार है। यात्रियों ने जिला इंतजामिया और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गांदरबल के बालतल और अनंतनाग के नुनवन बेस कैंप से अभी तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन कर लिए हैं। इस बार के में बाबा का जो बड़ा विशाल स्वरूप बना है और बाबा के जो दर्शन हो रहे हैं सभी से भक्तों को बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं, जिसमें बाबा का जो विशाल रूप है शिवलिंग देखकर सभी भक्त बड़े खुश हो रहे हैं कि बाबा का काफी सालों बाद ये जो स्वरूप बना है विशाल रूप का, और बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। मैं यात्रियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अभी बाबा का बहुत ही अच्छा स्वरूप है। आप लोगों से निवेदन है कि जितने अधिक से अधिक संख्या में अमरनाथ यात्री आना चाहते हैं वो आए और ये बाबा के दर्शन करें। बहुत बढ़िया दर्शन हुए इस बार। भवन पे ठंड बहुत ज्यादा थी और बहुत ही आनंद उठाया हमने यात्रा का, और घोड़े पिट्ठू वालों ने सभी बंदों का साथ दिया और यात्रा में किसी चीज भी कोई कमी नहीं रही। सबसे बड़ी बात यहाँ रही जो आज तक मतलब पिछले 5 सालों में जितनी बर्फ पड़ी थी उतनी ही बर्फ 5 साल जो पहले पड़ी थी अभी भी उतनी बर्फ, उससे ज़्यादा बर्फ पड़ी है इस बार। ठीक है जी। और बाकी लोगों ने जितना भी है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ, सबने ज़्यादा कोऑपरेट किया। खाने की व्यवस्था पूरी थी, हर चीज़ थी। जो हेल्पलाइन थी हमारी वो भी बड़ी अच्छी थी, बहुत सपोर्ट किया हमें पुलिस लाइन ने भी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जम्मू में एक मजहबी तकरीब का इनेकाद किया गया। स्वामी कारजी गीता सत्संग आश्रम में मुनक्कदा इस तकरीब में अकीदतमंदों ने गौरव स्वामी कुमार जी की इज्जत अफजाई की। गीता पाठ और भजन कीर्तन का भी एहतमाम किया गया था। अच्छी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की।
स्वामी कुमार जी ने कहा कि गौरव इंसान को परम ज्ञान देने में अहम किरदार निभाता है। मैं सनातन धर्म को कहिए ये नहीं कि हिंदू धर्म का है, ये सिर्फ ह्यूमैनिटी समझाता है एक इंसान को कैसे इंसान होना चाहिए। फिर वहाँ मजहब वजहब कुछ नहीं होता है, नफरत नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है, वहाँ सिर्फ केवल प्रेम और प्रेम होता है। और प्रेम से ही संसार में आगे का सफर हम अपना अवताई भगवान से मिलते हैं। बोधी खरबो गांव में फूलों का त्यौहार जोश जज्बे से मनाया गया। यहाँ फूलों का त्यौहार बहुत मशहूर है। तुलु आफ्ताब से कबल नौजवान पहाड़ों से फूल ले आते हैं और सदाबहार दरख्त के साथ एक डंडे में बंधकर दरिया के किनारे नहा धोकर अपने आप को पाक करते हैं। इसके बाद बौद्ध मजहब की मुतबरिक किताबों को लामा लेकर आते हैं। गांव के हरे भरे खेतों से होते हुए तमाम गांव का चक्कर लगाया जाता है। इस दौरान मुल्क कौम की तरक्की, आपसी भाईचारा और इत्तेहाद के लिए दुआ की जाती है। आखिर में गांव के गंपा में सब जमा होकर मुश्तरका तौर पर पूजा की जाती है। 20वें करगिल विजय दिवस के सिलसिले में इंडियन आर्मी ने हॉर्स पोलो और आर्चरी मुकाबले मुनक्किद किए। कमांडर 56 ब्रिगेडियर वी गणपति मेहमान खुसूसी थे। फाइनल मुकाबला 56 ब्रिगेडियर और 192 ब्रिगेडियर के बीच खेला गया। दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी ने करगिल जंग के दौरान शहीद हुए जवानों को खराज क़दर पेश किया। करगिल में टूरिज्म समेत दीगर जिला अफसरान के दरमियान एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर 21 जुलाई से शुरू होने वाले 4 रोजा करगिल टूरिस्ट फेस्टिवल के हवाले से किए गए इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। कल्चरल प्रोग्राम, ट्रेडिशनल गेम्स और एडवेंचर एक्टिविटीज होगी और 29-30 जुलाई को प्रथम संस्कार में होगा। उसमें भी कल्चरल प्रोग्राम, याक रेस बाकी और कल्चरल एक्टिविटीज होंगी। आज हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के चेयरमैनशिप में फाइनल मीटिंग हुआ और इसमें सारे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं आर्टिस्ट के अकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी वहाँ पे प्रेजेंटेशन का, वो सारी चीज़ हमने फाइनलाइज आज की। टंगमार के ज़रिन में कायम आर्मी गुडविल स्कूल में सकाफती व तमद्दुनी तकरीब का एहतमाम किया गया। चनार गुंजर के ब्रिगेडियर अनुराग विजय और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल अक्षय उर्हे मेहमान ज़ीवक्कार की हैसियत से मौजूद थे। डायरेक्टर ESM वेलफेयर बोर्ड, इंडियन नेवी के कैप्टन नकवी, असिस्टेंट डायरेक्टर IB, SDM गुलमर्ग, DSP टंगमर्ग के अलावा सिविल इंतजामिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। तालिब इल्मों ने रंगारंग सकाफती व तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। अनुराग विजय ने कहा कि फौज वादी में बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में पेश है। फारूक शाह ने कहा कि टंगमर्ग में आर्मी गुडविल स्कूल एक मिसाली स्कूल है। I feel immensely honored that I'm the part of this institution and I'm the part of these such an amazing talent and fabulous events. I think हम यहाँ पे बहुत सारे events करते हैं but this was the best event I've ever seen in this school. इसमें ये बहुत ज़्यादा great event था। इसमें हमारी चीफ गेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल के यानी बहुत खास थे and we are very thankful to अक्षय उरी सर। पहले मैं आर्मी गुडविल स्कूल के मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज की इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। दिस स्कूल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन आवर एरिया और मेरी वही कोशिश रही एज सेक्रेटरी एजुकेशन भी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की मदद की जाए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बैक एंड सपोर्ट पर आए ताकि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके एक्सीलेंट बन जाएं। ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया के किसी भी नॉर्मल एरिया में, नॉर्मल जगह एक एनुअल डे हो रहा है जैसे होना चाहिए। बच्चों ने और उनके माता पिता ने बड़ी खुशी से इसको पार्टिसिपेट किया और हम इसको कंडक्ट करने में बड़े खुश हुए। आर्मी की जानिब से श्रीनगर के अहम इलाके रंगरेट में सोलर लाइट्स नस्ब की गई हैं। यहाँ देर रात तक ट्रैफिक रवा दवा रहता है। ये रूट काफी तंग है और इसमें कई ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं। इसी को नजर में रखते हुए आर्मी ने सिविल अथॉरिटीज के साथ मिलकर इस रूट पर सोलर लाइट्स नस्ब कराई। लोगों का कहना है कि इससे न सिर्फ सड़क हादसा थम जाएंगे बल्कि समाज दुश्मन हरकत पर भी रोक लगेगी। अंधेरे में लोग चलते हैं, रात को पता नहीं चलता है, तो उन्होंने एक उपराला किया है कि ये सोलर लाइटें लगा रहे हैं जिसमें हमारे गांव में भी एक इन्होंने आज एक लाइट का उद्घाटन किया है।
लेडीज़ हों, बच्चे हों, कोई भी रात में समय निकले, अंधेरे के बाद निकले, वो सेफ और सिक्योर है। हमारा ये आगे भी यही प्रयत्न रहेगा, कोशिश रहेगी कि जो भी हम मदद कर सकते हैं आवाम की, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे वो अभी वो कह रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर्स रिक्वायरमेंट है, हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के थ्रू भी वो कंप्लीट करवाएंगे। यंग स्टार क्रिकेट क्लब की जानिब से मुनक्किदा ऑल इंडिया गुफरान क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां फाइनल मैच स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में खेला गया। ये मैच फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब घाट और रहमत क्रिकेट क्लब डोडा के दरमियान खेला गया। रहमत क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज कर ली। जिला भर से लोगों ने मैच का मुशाहिदा किया। डीसी डोडा डॉक्टर सागर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आई 64 टीमों ने शिरकत की। अब रेशम सनत को फरोग देने के लिए मुतल्लका महकमा जल्द ही सैरी टूरिज्म शुरू करने जा रहा है। इसके तहत रियासत के अहम सयाहती मकामात पर महकमे के खुसूसी सेंटर कायम किए जाएंगे। इन बातों का इजहार महकमे के डायरेक्टर ने किया। उन्होंने जिला पुलवामा के केसरी गांव इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस सनत को सियाहत से जोड़ने से काफी फायदा हासिल होगा। माता वैष्णो देवी के तीर्थ स्थापन पर खुसूसी सेंटर कायम किए जाएंगे। यहाँ रेशम तैयार करने के रेलिंग यूनिट कायम होंगे। डायरेक्टर के हमरा प्रोजेक्ट ऑफिसर जावेद अहमद भी थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से रीच आउट प्रोग्राम सलाम कलाम जारी है। सज्जाद गनी लोन ने दूसरे रोज हंदवाड़ा के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने खैपुरा, तरकापुरा, करहमपुरा, थरकली, वडीपुरा का दौरा किया। लोन ने लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। लोन के हमरा एडवोकेट बशीर अहमद डार, आशिक हुसैन लावर, अब्दुल मजीद वानी, मोहम्मद शफी बट व दीगर कारकुन मौजूद रहे। एनसी लीडर शफकत अली बटाली ने लंगेट के नंबरदारों और चौकीदारों को दरपेश मसाइल के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान नंबरदारों और चौकीदारों ने अपने मसाइल उजागर किए। शफकत अली बटाली ने उन्हें तमाम मसाइल गवर्नर इंतजामिया की नोटिस में लाने का यकीन दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर व दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। डोडा जिले में भरत रोड पर एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल्टो कार 400 फुट गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार नियाज अहमद की मौत हो गई। नियाज अहमद का ताल्लुक मुलवास इलाके से था और वो महकमे पुलिस में एएसआई के ओहदे पर फाइज थे। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज विवेक गुप्ता ने कठुआ पुलिस लाइन में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट दफ्तर का इफ्तिताह किया। विवेक गुप्ता ने कहा कि किसी भी तरह के नाखुशगवार हालात का मुकाबला करने के लिए फौज पूरी तरह मुस्तैद है। उनका कहना है कि सरहद पर भी फौज चौकस है। डीआईजी ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत और खिदमत के लिए भी फौज पूरी तरह तैयार है। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर एक मरतबा फिर देखने को मिला। चंद रोज पहले मागाम से पटन रूट की खस्ता हाली को लेकर न्यूज 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। इसके बाद मुतल्लका महकमे ने पीएमजीएसवाई के तहत फौरन इस सड़क पर मैकडम बिछाने का काम शुरू किया। लोगों ने न्यूज 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये वाहिद चैनल है जो लोगों की आवाज है। मुतल्लका महकमे के जेई ने भी न्यूज 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया न्यूज़ 18 का। वी केम थ्रू न्यूज़ 18 तो इमीडिएटली हमने इसमें वो रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट किया, जो वक्तन फवक्तन लोगों के मुश्किलात हम तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। वी आर मोस्ट थैंकफुल न्यूज़ 18। और वक्तन फवक्तन जब भी हमारे कोई मसाइल होते हैं, हमारे पास न्यूज़ 18 उर्दू के जो नुमाइंदे, हम इनसे अपने मसाइल जो है शेयर करते हैं और डेफिनेटली हमारे जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जाता है। तो एक बार फिर से न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हैं।